Good morning, students. Today we'll be dealing with section 17, which speaks about the direction for accumulation of the income which is arising out of the property. So, we'll be dealing with the direction for accumulation, section 17 of Transfer of Property Act. Now, what in general the rule is? In general, the rule is whenever a property is transferred, then in that case, whatever the income or a benefit arising out of that particular property need to be also transferred. Then only the transferee would be getting an absolute right over that particular property, and then only in that position he'll be enjoying that particular property. But section 17 is an exception to this particular rule. And what does section 17 says? That under exception there are 3 to 4 situations wherein even though property is transferred from transferor to the transferee, but still the direction for accumulation of the income could be given, and accordingly for a certain period of time the income arising out of that particular property can be accumulated. Now, what are those situations? How the directions is to be given? To what extent or to what period the direction would be considered to be a valid one? In what situation it would be considered to be a void one? And what do we mean by the term accumulation? So far as this particular section is concerned, that is what we are going to see in today's lecture. Now, first of all, in general, accumulation means what? The storage of a wealth for an unreasonable period of a time. क्या है? Storage of a wealth for an unreasonable period of the time without its distribution to the expectant. Here, without its distribution, यानी किसका distribution? Wealth का distribution to the expectant here, or disposal may cause injury to the society. और यदि मान लीजिए मैंने ऐसे ही distribute कर दिया, then in that case disposal कर दिया particular property का, then in that case it would cause an injury to the society. अगर इस तरीके का transaction होता है तो we call the same to be accumulation. तो यहाँ पे हम storage कर रहे हैं wealth का, लेकिन unreasonable period के लिए अगर कर रहे हैं बिना distribute किए property उन लोगों को जो कि actually जिनको की जानी चाहिए, जिनको expectation है कि हमको property मिलेगी, इस तरीके से जब हम बेसिकली डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन करते हैं बेसिक इनकम का प्रॉपर्टी पे से, तो इस तरीके से जब जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो क्या करेगा? एक तरीके का इंजुरी टू द सोसाइटी होगा. नेक्स्ट मेथड क्या होगा एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का? तो ये बोलता है इट इज अ मेथड ऑफ रिस्ट्रेनिंग एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. एक तरीके से जब हम मान लीजिए डायरेक्शन देते हैं कि प्रॉपर्टी जो हमने आपको ट्रांसफर करी है उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करो. सपोज फॉर एग्जाम्पल आई ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ यू, एंड मैं कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको ट्रांसफर की है पर इसमें से अराइज होने वाली इनकम को आपको जमा रखना है. तो क्या आप ऐसा बोल पाएंगे कि आप वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया, एक तरीके का डायरेक्शन आपको देके कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली इनकम को आप एक्यूमुलेट करो. व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिस्ट्रेन्ड द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय यू. मैंने आपकी प्रॉपर्टी को आपको जो एंजॉय करने का राइट था उसको मैंने रोक दिया, लिमिट कर दिया, कहीं ना कहीं हर्डल लेके आ गई मैं. तो इस तरीके से बेसिकली नहीं किया जाना चाहिए. इसी के अगेंस्ट में देखा जाए तो ये रूल जो है बेसिकली सेक्शन 17 में बनाया गया है. वेयर द टर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट्स दैट income arising from the property shall be accumulated either wholly or in part during a period longer than the life of the transferor or a period of 18 years from the date of the transfer, such direction shall be void. अब ये जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 है, ये क्या कहता है? अगर मान लीजिए ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त में ट्रांसफरर ने डायरेक्शन दिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाली जो इनकम है वो आप इधर पूरी इनकम जमा करोगे या फिर इसमें से कुछ पार्ट जो है वो जमा करोगे. और कब तक जमा करोगे? मेरे मरने के बाद, यानी लॉन्गर देन द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, यानी मेरे मरने के बाद में भी आप क्या करते रहोगे? इसकी इनकम को जमा करते रहोगे.
या फिर जिस तारीख को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है उससे लेके 18 इयर्स तक आप क्या करते रहोगे, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाली प्रॉपर्टी जो इनकम है उसको आप एक्यूमुलेट करते रहोगे। देन इन दैट केस इस तरीके का जो डायरेक्शन है वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। Now let us see what has been provided under section 17 on the basis of that. On the basis of that हमको दो चीजें पता चलती है और वो दो चीजें ऐसी है कि यस हम जो है एक तरीके से प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करा सकते हैं, लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहने का मतलब है लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर या फिर पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस तारीख को मैंने ट्रांसफर क्रिएट किया है उस तारीख से लेके सिर्फ 18 साल तक ही हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान ही प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम जो है वो एक्यूमुलेट की जा सकती है, नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 18 इयर्स। और साथ ही साथ जो ट्रांसफरर है, हाँ, उसकी लाइफ तक, जब तक वो जिंदा है तब तक ही उसके द्वारा दिया गया इस तरीके का डायरेक्शन वुड बी हैविंग अ लीगल इफेक्ट एंड नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सेक्शन 17 में बताया गया है वो ये बोलता है कि इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। जनरल रूल जो है वो क्या बोलता है कि whenever a property is transferred by a transferor to a transferee, then all the right relating to that particular property and the interest therein is bequeathed to the transferee. Now the transferee is having a right to enjoy that particular property in the manner he wish. But डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के तहत सेक्शन 17 में हम भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को, लेकिन जो ट्रांसफरी है उसको क्या करना है, उसको डायरेक्शन मानना है। किसका डायरेक्शन मानना है, ट्रांसफरर का डायरेक्शन मानना है। ट्रांसफरर ने क्या डायरेक्शन दिया है, ट्रांसफरर ने ये डायरेक्शन दिया है कि जो प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। अगर मान लीजिए वो इस तरीके का डायरेक्शन देता है कि एक्यूमुलेशन मेरे बाद मरने के बाद में भी करना है या फिर आफ्टर द पीरियड ऑफ 18 इयर्स भी करना है, देन इन दैट केस इट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ वॉइड डायरेक्शन एंड द ट्रांसफर वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड वन। बट यदि मान लीजिए ट्रांसफरर जो है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द ट्रांसफर प्रोविजन ऐसा करता है कि भाई आपको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ इस पे से अराइज होने वाली इनकम को आपको मेरे जीते जी, जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक इससे अराइज होने वाली इनकम को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। नेक्स्ट, या फिर आज की तारीख से लेके 18 इयर्स तक के टाइम पीरियड तक आपको इसको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है एंड नॉट बियॉन्ड दैट, देन इन दैट केस सच टाइप ऑफ अ डायरेक्शन वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ वैलिड वन। अब ये जो बेसिकली प्रिंसिपल है जो इस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 17 ऑफ डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन में, ये इंग्लिश केस लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब ये इंग्लिश केस लॉ क्या है, इंग्लिश केस लॉ जो है दैट इज थेल्यूसन वर्सेस वुडफोर्ड। इस केस में क्या हुआ था कि थेल्यूसन ने ट्रांसफर किया उसकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट, एक ट्रस्ट क्रिएट किया और बोला कि इस पे से अराइज होने वाली प्रॉपर्टी जो है उसको एक्यूमुलेट करो। अब जो ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है वो देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए भी किया जा सकता है और जो ओनर है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का वो अपने आप को ट्रस्टी भी नॉमिनेट कर सकता है। तो उसके तहत यदि मान लीजिए उसने ऐसा डायरेक्शन इशू किया कि जो भी प्रॉपर्टी मैं ट्रस्ट में दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, बिक्विट कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम जो है उसको आपको एक्यूमुलेट करना है। कब तक एक्यूमुलेट करना है, जब तक 3 बेटे हैं, जब तक मेरे 3 बेटे की जिंदगी है तब तक आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करना है। एंड ऑफ ऑल देयर डिसेंडेंट्स हु माइट बी लिविंग एट हिज डेथ, एंड उनके जो भी डिसेंडेंट्स होंगे, बेटों के जो भी डिसेंडेंट्स होंगे वो भी अगर मान लीजिए मेरे जीने तक अगर आ जाते हैं, देन इन दैट केस वो भी तब तक जब तक जी रहे हैं तब तक इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को आपको एक्यूमुलेट करना है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग ऑफ देम, और उनमें से जो भी लास्ट में सर्वाइविंग डिसेंडेंट रहेगा उनको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो डिवाइड कर दी जाएगी। देन लिविंग एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट ऑफ हिज 3 सन, तो उनमें से जो भी बेसिकली 3 सन्स का एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट होगा उनमें ये प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी।
then in that case the court held the same to be a valid direction. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरर के लाइफ तक, उसके बाद में उसके बेटों की लाइफ तक, और उसके बाद उनके बेटों के रहते रहते उनके जो बच्चे हुए हैं वहां तक प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली इनकम को हमने टाई अप कर दिया है। और यहाँ पे ये सब लिविंग है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर मेड बाय द ट्रांसफरर, then in that case such type of direction would be termed to be a valid one. Now let us see what are the effects of this provision which has been provided under section 17. Students, there are 4 effects of this. Now let us see one by one these effects. At the end of such last mentioned period, यानी life of the transferor या फिर 18 years period, ठीक है। तो at the end of such a last mentioned period, the property and its income shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made has elapsed. कहने का मतलब है कि जो भी दोनों में से जो भी पीरियड होगा उसके एंड होने पर क्या होगा, प्रॉपर्टी या फिर उससे राइज होने वाली इनकम जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जैसा मानो कि डायरेक्शन दिया ही नहीं गया था एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम का। क्योंकि हमने बताया कि ये जो डायरेक्शन है ये कब तक इफेक्ट में रहता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरर एंड दी 18 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। अगर ये दोनों में से कोई एक बेसिकली मेंशन जो पीरियड है यदि वो सिचुएशन है तो ऐसे वक्त में प्रॉपर्टी और उससे राइज होने वाली इनकम जो है आफ्टर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पीरियड would come to an end and accordingly the property could be enjoyed in a way the transferee want to enjoy. Next is, if the direction of accumulation is made specifying any of the 2 period, then it will be seen what happens after the transfer. तो कहने का मतलब है अगर मान लीजिए डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम दिया और उसमें दोनों भी तरीके के डायरेक्शन इशू किए गए हैं, कहने का मतलब है या तो मेरे जीते जी तक या फिर मेरे मरने के या मेरे मरने के नहीं, मेरे जीते जी तक प्रॉपर्टी से राइज होने वाली इनकम को आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 ईयर्स, अगर इस तरीके का बेसिकली दिया जाता है डायरेक्शन, देन इन दैट केस हम ये देखेंगे कि जिस तारीख को ट्रांसफर किया गया है बेसिकली प्रॉपर्टी, उस तारीख में कौन सा इवेंट एग्जिस्टेंस में है, ट्रांसफरर मर गया है या ट्रांसफरर जिंदा है, और दूसरी बात कि 18 इयर्स का पीरियड जो है वो शुरू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दैट इज व्हाट we will be having the effect of this particular section. Next is, if the transferor dies more than 18 years from the date of the transfer, the direction will be void after the death of the transferor. Now students, क्या हुआ तीसरे सिचुएशन में, जो ट्रांसफरर है वो डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद 18 इयर्स बाद मरा, ठीक है, उसने जिस तारीख को डेट ऑफ ट्रांसफर किया उससे वो 18 इयर्स के बाद मरा, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स, यानी मोर देन 18 इयर्स वो जिया, देन इन दैट केस अब क्या होगा, अब हम मानेंगे कि फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, बस वहीं तक पीरियड था, और अब आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर अब हमको प्रॉपर्टी पे अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसके बाद में भी उसको अगर प्रोलॉन्ग करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, देन इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि वो डायरेक्शन जो है वो वॉइड था। नाउ नेक्स्ट इज, इफ ट्रांसफरर डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, द डायरेक्शन विल बी वॉइड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 18 इयर्स। अगर मान लीजिए ट्रांसफरर जो है उसकी डेथ हो जाती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 18 इयर्स, 18 इयर्स के पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो जिस डेट को बेसिकली ट्रांसफर किया है उस डेट से, क्योंकि उसे 18 इयर्स तक एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए था इनकम, लेकिन ये जो ट्रांसफरर है ये तो 18 इयर्स के पहले ही मर गया, तो जो भी डायरेक्शन जाएगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 18 इयर्स, जो भी डायरेक्शन जाएगा बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 18 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से हम काउंट करेंगे द पीरियड ऑफ 18 इयर्स, देन इन दैट केस जो भी पीरियड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 18 इयर्स रहेगा, दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान अगर हम बोलेंगे कि हमने ये डायरेक्शन अप्लाई किया है तो वो डायरेक्शन वुड बी टर्म्ड टू बी वॉइड, केवल ये डायरेक्शन कितने पीरियड तक के लिए रहेगा, अप टू द पीरियड ऑफ 18 इयर्स ओनली। Now we have seen various situations wherein we have discussed
that how and when the period of accumulation would be calculated, and how it is to be calculated, from which date it is to be calculated. Now let us see, there are exception to section 17 of transfer of property. कहने का मतलब है कि आप बेसिकली डायरेक्शंस दे सकते हैं accumulation of income के लिए beyond this period also. कौन कौन से सिचुएशंस के अंदर, तो नॉर्मली अभी तक हमने देखा कि वो वॉइड रहेगा अगर बियॉन्ड पीरियड जाता है तो, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये 3 एक्सेप्शन जो है ये बोलते हैं कि इवन पीरियड बियॉन्ड 18 ईयर्स या फिर बियॉन्ड दी ट्रांसफर्स लाइफ भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करा सकते हैं। ये 3 रीजंस के लिए, कौन कौन से रीजंस के लिए, सबसे पहले है पेमेंट ऑफ डेब्ट्स के लिए, प्रोविजन फॉर पोर्शंस यानी शेयर्स ऑफ लीगल हेयर के लिए, तीसरा प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। नाउ लेट अस सी वन बाय वन व्हाट डज दिस मीन। नाउ फर्स्ट द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। पेमेंट ऑफ डेब्ट्स का क्या है, अब डेब्ट्स मतलब कर्जा, ये एग्जिस्टिंग भी हो सकता है ट्रांसफरर के ऊपर, या फिर ट्रांसफरर ने फ्यूचर में ही किसी तरीके के डेब्ट्स को लेने का एग्रीमेंट पहले ही कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। If the debts are paid and satisfied not out of income but out of capital, अगर जो भी डेब्ट्स हैं चाहे फिर वो एग्जिस्टिंग है या फिर फ्यूचर है, अगर ये डेब्ट्स पेड हैं या फिर सेटिस्फाई किए गए हैं इनकम से नहीं, किससे, कैपिटल से, जो प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल कैपिटल है उससे, a provision for accumulation of income in order to recoup the capital, और उस कैपिटल को मेक ओवर करने के लिए प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आउट ऑफ द फंड इज द ट्रस्ट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम टू रिकूप कैपिटल इज वैलिड। तो इस तरीके से हम जो बेसिकली इनकम को एक्यूमुलेट कराएंगे वो डायरेक्शन कैसा रहेगा, वैलिड रहेगा, ओनली फॉर वन ऑफ द स्टेट्यूटरी पीरियड, दोनों में से किसी भी एक स्टेट्यूटरी पीरियड के लिए ही ये किया जा सकेगा। एक्सप्लेनेशन सुनिए, सच प्रोविजन डू नॉट टाई द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली। इस तरीके का जो प्रोविजन अगर हम करते हैं कि ठीक है इनकम को हम इनकम से डेब्ट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम डेब्ट सेटिस्फाई करेंगे कैपिटल ऑफ द प्रॉपर्टी में से, लेकिन ये कैपिटल को रिकोप करने के लिए हम इनकम को एक्यूमुलेट करेंगे और ये वैलिड है। तो कहने का मतलब है, इसका तो एक ही मतलब निकला कि ये जो प्रोविजन है ये प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली टाई अप नहीं कर रहा है। क्रेडिटर जो है वो किसी भी टाइम में इंसिस्ट कर सकता है ऑन द पेमेंट और द पर्सन इंडेप्टेड कैन एनी टाइम बी डिस्चार्ज और द डेब्ट। कहने का आज उसके पास में प्रॉपर्टी का कैपिटल इनकम है, कभी भी वो क्या कर सकता है, अपने आप को उस पर्टिकुलर डेब्ट से डिस्चार्ज कर सकता है, और क्रेडिटर जो है कभी भी उसको इंसिस्ट कर सकता है कि आपने जो कर्जा लिया है उसका पेमेंट कर दीजिए, बिकॉज अब वो प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो जो कैपिटल है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की उसके ऊपर डिपेंड है। और डायरेक्शन जो है वो तो हमने रिकोप ऑफ कैपिटल करने के लिए किया है, सो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर इनकम को हम एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए, बट वी आर मेकिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकोपिंग द प्रॉपर्टी सो दैट द डेब्ट कुड बी सेटिस्फाइड, द डेब्ट कुड बी पेड। देन इन दैट केस इस तरीके का पेमेंट ऑफ डेब्ट जो है इज एन एक्सेप्शन एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड वन। नेक्स्ट इज provision for portion. Now let us see what do we mean by the term provision for portion. Students, portion means part or a share of the children. Now whenever we are directing for accumulation of income, ऐसे वक्त में हम प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, बेसिकली बच्चों का पार्ट या शेयर बच्चों को दे सकते हैं, और उसके बाद में यदि हम डायरेक्शन एक्यूमुलेशन के लिए ये बेसिकली इनको पोर्शन देने के लिए प्रोविजन करना चाहते हैं और उस प्रोविजन के तहत हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम करते हैं, देन इन दैट केस इस तरीके का डायरेक्शन वुड बी टर्म टू बी अ वैलिड वन। दूसरी बात ऐसे कि यहाँ तक कि हम अपने चिल्ड्रन का ही नहीं, रिमोटर इश्यूज के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोविजन कर सकते हैं। अगर हम रिमोटर इश्यूज के लिए भी प्रोविजन करते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने पिछली बारी पढ़ा था पिछले सेक्शन में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में कि 2 जनरेशन तक हम प्रॉपर्टी टाई अप कर सकते हैं। देन इन दैट केस एक तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हम वहाँ पे हम प्रॉपर्टी टाई अप कर रहे थे और यहाँ पे हम उससे अराइज होने वाली इनकम को टाई अप कर रहे हैं।
तो रिमोटर इश्यूज के लिए भी ऑफ द ट्रांसफरर प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले इनकम को भी यदि हम एक्यूमुलेट करने का डायरेक्शन देते हैं, देन इन दैट केस दैट वुड नॉट बी टर्म टू बी इनवैलिड, दैट वुड बी टर्म टू बी वैलिड. नाउ प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस करने के लिए डेफिनेटली प्रॉपर्टी से अराइज होने वाले इनकम को कभी भी एक्यूमुलेट करने का डायरेक्शन दिया जा सकता है. इस तरीके का डायरेक्शन दिया जाता है तो दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरीज इटसेल्फ, एंड हेंस सच टाइप ऑफ अ डायरेक्शन कैनॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वॉइड वन, और इस तरीके के डायरेक्शन को हम वैलिड ही कंसिडर करेंगे. नाउ इस तरीके के प्रोविजन हमको कहीं और किसी दूसरे लॉ में देखने को मिलते हैं क्या? दैट इज इम्पोर्टेंट. तो यस, इस तरीके के प्रोविजन हमको इंग्लिश लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 में भी देखने को मिलते हैं, बट वहां पे पीरियड जो है दैट डिफर्स. कहने का मतलब है यहाँ पे लाइफ और लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और ट्रांसफरर, यानी प्रॉपर्टी जो है उस पर से अराइज होने वाली इनकम को कब तक हम अपने पास एक्यूमुलेट कराने का डायरेक्शन दे सकते हैं. अब इसके पहले वाले में हमने देखा सिर्फ एक ही ट्रांसफरर था, यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रांसफरर हो सकते हैं. एक ट्रांसफरर मान लीजिए 20 साल तक ही जिया फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और एक जो है वो 35 साल तक जिया. देन इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? 35 साल तक डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम के तहत इनकम को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा. This was actually the law provided under the Act of 1925, English Law of Property Act. Next is 21 years. अभी हम इसके पहले देख रहे थे 18 years from the date of the transfer, और यहाँ पे 21 years from the death of the transferor. It is 21 years from the death of the transferor. इसके पहले वाले में हमने देखा था 18 years from the date of transfer. Next is duration the minority of any person living at the death of the transferor. साथ ही साथ हमने उसके पहले पढ़ा था कि अगर मान लीजिए सन है तो उसकी पूरी लाइफ तक, और यहाँ पे क्या है? ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ एनी पर्सन लिविंग एट द डेथ ऑफ द ट्रांसफरर. ट्रांसफरर की डेथ के वक्त में यदि कोई माइनर पर्सन है तो उसकी माइनॉरिटी जब तक खत्म नहीं होती तब तक इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को हम एक्यूमुलेट करने का डायरेक्शन दे सकते हैं. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ एनी पर्सन हु वुड बी एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी इफ ही विल बी ऑफ फुल एज. तो जो भी एज ऑफ मेजॉरिटी उसके लिए रखी गई है, मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के सुपरविजन में है तो 21 ईयर्स एज, अगर कोर्ट के सुपरविजन में नहीं है तो 18 ईयर्स ऑफ एज. तो ड्यूरिंग दी माइनॉरिटी पीरियड जब तक उसका चल रहा है तब तक हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे ट्रांसफर की गई है उस पर अराइज होने वाली इनकम को accumulate कर सकते हैं, and accordingly such type of a direction would be termed to be a valid one. Students, I hope you have understood the concept, and if there is any